In our last session, we were talking about the SSL. We discussed that there are two types of protocols that we deal with. One of them is called secure socket layer, and the updated version is called transport layer security. Then we also talked about that it's actually a certificate, an authentication certificate that is provided by a private organization that is called the certificate authority, and it is issued by the private organization just to verify that this person is authentic and we can communicate with that particular person. And in your URL, if your URL is containing HTTPS or the padlock is over there, this means that you are communicating securely. Moreover, class, we also talked about the steps that how an SSL session is being established, request, respond, copy request, then verification and all that. And we also discuss about where SSL and TLS applications are applicable and where we use these applications. Now today we are going to kick off with another part of the SSL. Part is called SSL or TLS header. Header class, actually header contains the information about about a protocol. तो हेडर क्या करता है, आपके प्रोटोकॉल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. And we are having two types of sorry, we are having a header for SSL and we are having a header class for TLS. दोनों का हेडर आपके पास क्या होता है, इट्स सेम. तो अगर एग्जामिनर कल को पेपर में सवाल दे दे कि डिस्क्राइब द हेडर ऑफ एसएसएल या फिर टीएलएस, सो यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब दैट हेडर. बेटा, आपको वो हेडर डिस्क्राइब करना आना चाहिए. ठीक है, यू शुड नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट हेडर. सो लेट्स सी. Let me work on this as well. ओके, थोड़ा सा चेंज हम लोग लाए आज की क्लास के अंदर. दिस इज वन ऑफ द टूल. एक हमारे पास दिस इज नोटेबिलिटी. सो थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको इंस्टॉल किया था. सो आई एम जस्ट चेकिंग, वेरीफाइंग कि आपके पास क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो दैट कि मैं इन फ्यूचर अगर इसके ऊपर वन नोट छोड़ के इसके ऊपर अगर मैं मूव करता हूँ, सो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क. खैर, सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्लास. हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट द टीएलएस हेडर. टीएलएस या फिर एसएसएल हेडर. ठीक है, सो इसके हेडर की क्लास मैन भी टॉक अबाउट, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं आपके पास इन द हेडर ऑफ एसएसएल एंड टीएलएस. सो लेट मी ड्रॉ दैट हेडर फर्स्ट. Let me draw class that header first. This is how class the header looks like. And this header class is having two layers.
this header class is having two layers. The first layer is called handshaking layer, and the second layer is called record layer, and the second layer class is called record layer. Now moving forward, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. When we talk about the handshake layer, so handshake layer के अंदर आपके पास further 3 protocols होते हैं. हैंडशेक लेयर के अंदर क्लास फर्दर आपके पास क्या होता है? यू आर हैविंग 3 प्रोटोकॉल्स. नंबर 1, हैंडशेक प्रोटोकॉल. नंबर 2, अलर्ट प्रोटोकॉल. एंड नंबर 3, साइफर चेंज प्रोटोकॉल. And when we talk about the record layer, there is only one protocol that is called record protocol. So we are having only one protocol that is called record protocol. So we are having two types of layers. One is the record layer, and the next layer class is called ये क्या बन गया भाई? And the next layer class is called handshaking layer. अब मैं दोनों लेयर्स के क्या क्या काम है? इन लेयर्स के अंदर फर्दर आपके पास ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इन दोनों लेयर्स के आपके पास मल्टीपल काम है. सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट layer, that is called the record layer. So when we talk about class the responsibilities, the working of the record layer, तो इसका सिर्फ एक ही काम होता है, nothing more than that, nothing less than that. That is, it contains data being transmitted. It contains class data being transmitted over the session. जो आपका सेशन स्टेब्लिश होता है उसके बाद जो आपका डाटा ट्रांसमिट होता है, सो वो कौन हेल्प आउट करता है आपको? रिकॉर्ड लेयर इज द वन जो आपको हेल्प आउट करती है फॉर द डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट. सेकंड आपके पास क्लास एक और लेयर होती है, दैट इज हैंडशेकिंग लेयर. हैंडशेकिंग लेयर के अंदर तीन प्रोटोकॉल और है भाई. कौन कौन से? अलर्ट प्रोटोकॉल एंड साइफर चेंज प्रोटोकॉल. एंड रिकॉर्ड लेयर के अंदर आपका सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल, दैट इज रिकॉर्ड प्रोटोकॉल. सो साइफर चेंज या हैंडशेकिंग लेयर की द ड्यूटीज, द रिस्पांसिबिलिटीज आर मेनी. इसकी मल्टीपल ड्यूटीज हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ड्यूटी दैट यू शुड नो, हैंडशेकिंग layer. So when we talk about this layer, the first responsibility of this layer is, let me pick a good color. ये अच्छा लगेगा ब्लैक के ऊपर. The first responsibility class is, this is used to make connection. This is used to make connection between your web browser and web सर्वर. आपके वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान क्लास कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है, एस्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है. सेकंड, वन मोर रोल क्लास ऑफ दिस लेयर इज responsible for any warning or alert messages. अगर आपके पास कोई वार्निंग आपको डिस्प्ले करवानी है, आप लोगों को कोई अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है, दैट
द सर्वर इज नॉट वैलिड या वो गलत सर्वर है। सो यही हैंडशेक लेयर आपको क्या करती है, यही हैंडशेक आपको लेयर हेल्प आउट करती है। एंड द लास्ट वन क्लास, द थर्ड वन, दैट इज एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी इसी लेयर के अंदर होता है। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन is a part of this layer, is part of this layer. So this is class about the TLS and the SSL header, and you should know about ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो यू कैन मैक चैट, लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। ओके अच्छा, वी डोंट हैव अ क्वेश्चन। हमारे पास एक सजेशन आया हुआ यहाँ पे फ्रॉम जैन के सर, वाइट स्क्रीन वाज मोर फिजिबल। ठीक है जैन, वाइट स्क्रीन के ऊपर भी अभी आते हैं हम थोड़ी देर में। आज की क्लास आप थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन पे यूज करो, व्हाइट स्क्रीन में अगली क्लास में आएंगे। थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर यूज कर लूँ, उसके बाद फिर अगली क्लास से इसके अंदर चेंज कर देंगे हम। खैर, अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब। एंड लेट्स टॉक अबाउट क्लास। अब हम कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी का चैप्टर हमें जल्दी जल्दी एंड करना है ताकि हमारे पास ये पेपर 1 के हम लोग जितना भी हमारा रिमेनिंग स्टफ है इसको कंप्लीट करें, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, समथिंग अबाउट एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सीडेंटल लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। तो क्या हमारे पास एक्सीडेंटल जो लॉस होता है डेटा का, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और प्लीज आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि अब आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट आर द एक्सीडेंटल लॉसेस ऑफ डेटा, ठीक है। नंबर 1, अगर मैं एक आप लोग को हेल्प आउट कर देता हूं, एक मैं आप लोग को हेल्प आउट कर देता हूं, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर क्लास, ह्यूमन एरर आप लोगों ने क्या किया, बाय मिस्टेक आप लोगों ने क्या कर दिया, डाटा डिलीट कर दिया। बाय मिस्टेक आप लोगों ने क्या किया, डाटा डिलीट कर दिया। तो वन ऑफ द एरर्स कैन बी एक्सीडेंटल। अगर एरर की बात करें तो दैट कैन बी ह्यूमन एरर। बाकी क्लास कुछ आप लोग जरा बताएं मुझे। मुझे उम्मीद है आप लोग को पास बहुत सारी लिस्ट होगी, सो व्हाई नॉट, मुझे जरा बताएं और फर्दर क्लास हमारे पास क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या हमारे पास हो सकते हैं। अच्छा जी, ठीक। तो क्लास जैन का आंसर तो मैं लिखूंगा। नूर फातिमा बेटा आपका आंसर थोड़ा सा देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंटल लॉस। मैं उस लॉस की बात नहीं कर रहा ड्यू टू वायरस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैं उस वायरस उस चीज की बात, उस डोमेन में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी नहीं। करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका डाटा लॉस हुआ। सो जैन निकला, मैं यहाँ पे बिल्कुल सही बताया। आपका हार्डवेयर क्रैश कर जाए या आपका हार्डवेयर फेल हो जाए, तो हार्डवेयर फेलियर, ठीक है, गुड। फेलियर ऑफ स्टोरेज डिवाइस आरएल, सेम, यही हार्डवेयर फेलियर के अंदर ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड व्हाट एल्स क्लास, एनीवन एल्स, और कोई बताएं जरा मुझे, और कोई बच्चा मुझे बताए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं आप लोग का वेट करते करते मैं ऐसा हो गया हूं। कोई है चीज यहाँ पे, हाँ ये वाली सही है। तो क्लास दिस इज, आप लोग का आंसर वेट कर रहा हूं मैं, और लेट्स सी आप लोग कब रिप्लाई करते हैं। पावर फेलियर, गुड वन। अब्दुल्ला ने कलाम यहाँ पे एक अच्छा बताया, वन ऑफ मोर कैन बी पावर फेलियर, ठीक है, गुड, गुड पॉइंट। जैन ठीक है, सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर वो आ सकता है आपके पास, एक्सीडेंट ही है वो आपका, अगर आपका सॉफ्टवेयर फेल कर जाता है, ठीक है। ठीक है अशर, सेम आंसर, ओके। और क्लास हमारे पास यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वी आर हैविंग सम फिजिकल डैमेज, वी कैन हैव सम फिजिकल डैमेज एज वेल। एंड फर्दर क्लास आपका कराची में, तो आप लोगों को ये बताना चाहिए था, ये वाली बात आप लोगों ने बताई नहीं अभी तक।
आपका सिस्टम चोरी हो जाए, आपका मोबाइल चोरी हो जाए, ठीक है? तो चोरी होना भी एक क्लास एक आपका रीजन है। एंड आई थिंक वी आर गुड। और चलिए ये पॉइंट भी एक अच्छा है, दैट इज एनी सॉफ्टवेयर फेलियर। तो ये एक एक्सीडेंट ही होगा आपके पास कि आपका सॉफ्टवेयर क्या कर गया, फेल कर गया। तो दीज आर द क्लास फ्यू एक्सीडेंटल लॉसेस दैट यू शुड नो। और लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास यहाँ पे बात करेंगे आज की क्लास के अंदर, दैट इज अबाउट द मेलवियर्स। अबाउट द मेलवियर्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास मेलवियर, तो मेलवियर क्या होता है आपके पास? मेलवियर इज एक्चुअली एक ऐसा कोड होता है या ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है क्लास, एंड इट्स मोटिव, इट इज डिजाइंड और modify a computer and its data। आपके डेटा को क्लास मॉडिफाई कर देता है, आपके डेटा को चेंज कर देता है, और इन अ हार्मफुल मैनर, इन या विद अ मोटिव, विद अ मोटिव टू harm your system। तो क्या दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द मेलवियर। मेलवियर क्लास एक जर्नल टर्म है आपके पास बहुत बड़ा, एक जर्नल टर्म है वहां पर मेलवियर। और मेलवियर जिस तरह हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर हमारे पास हर कैटेगरी आ जाती है, हर चीज आ जाती है। तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द मेलवेयर, तो मेलवेयर के अंदर आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं क्लास, वायरस, फिशिंग, फार्मिंग, हैकिंग, एवरीथिंग। हर चीज क्लास आपके पास क्या होती है, इसके अंदर आ जाती है, ठीक है? एंड हमारे पास बहुत सारे मेलवेयर्स हैं, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन बाय वन। हम सारे मेलवेयर्स की क्या करेंगे, बात यहाँ पे करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास ईच एंड एवरी मेलवेयर ओवर हियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे। और मैंने सबसे पहले आप लोगों को पहला मेलवेयर क्लास बताया, एंड दैट इज क्लास हैकिंग। सबसे पहला मेलवेयर क्लास आपके पास क्या आता है, दैट इज हैकिंग। तो whenever we are talking about the hacking stuff, तो हैकिंग क्लास क्या होता है आपके पास? इलीगल इलीगल एक्सेस टू someone else system without without owners permission, ठीक है? तो विदाउट क्लास ओनर्स परमिशन आप लोग क्या करते हैं, किसी का सिस्टम को अगर एक्सेस करते हैं, और आपका मोटिव क्या होता है, विथ intentions of deleting, altering and corrupting files। तो क्लास दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द हैकिंग। हैकिंग क्लास जब भी आपके पास की जाती है, तो आपका मोटिव बिहाइंड यही होता है। लेकिन आपके पास कभी कभार क्या होता है, एक और चीज भी आती है, एक और वर्ड भी आता है, दैट यू शुड नो, दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। एंड क्लास आपके पास आर्मी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, आपके पास अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करवाती है,
खुद अपने इंजीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग क्या करें, काइंडली हमारे सिस्टम को हैक करें, या फिर क्लास कभी कभार हैक हो जाता है आपका सिस्टम, तो उसको रीस्टोर करने के लिए एथिकल हैकर्स को क्लास क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। तो एथिकल हैकिंग क्लास इज अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज है आपके पास। और लेट्स राइट डाउन अबाउट द एथिकल हैकिंग एज वेल। ऑथराइज्ड बाय organization to check their security measures. Checking the system against any attack. ठीक है, तो क्लास दिस इज द रोल ऑफ द एथिकल हैकर्स। फर्दर वी आर हैविंग वन मोर डेफिनेशन क्लास। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना बहुत सारी डेफिनेशन है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 3 डेफिनेशन तो देख चुके हैं, लाइक मेलवेयर, हैकिंग, एथिकल एथिकल हैकिंग, एंड वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस। तो मैं क्लास यहाँ पे आप लोगों के सामने वो डायरेक्टली वो डेफिनेशंस क्लास ओपन कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली क्लास क्या कर रहा हूँ, वो सारी डेफिनेशंस आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ, एंड वी विल बी गोइंग थ्रू क्लास ईच डेफिनेशन टाइमली। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारी डेफिनेशंस देखते हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी। ओके, after class we are having one more definition class, that is of the virus. तो whenever we are going to talk about class virus, तो viruses क्या होते हैं, a program or programs that can replicate themselves with the intention of deleting and corrupting the file. Simple virus की definition है आपके पास, nothing more than that. worm की अगर बात करें तो worm class क्या होता है, a type of standalone virus that can replicate themselves with the intention of spreading to other computers, slowing down a system performance. अब देखिए क्लास, इस स्टेज के ऊपर अब आप लोगों को वायरस और वॉर्म के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। वॉर्म क्लास क्या करता है, आपके पास आपके कंप्यूटर में आके बैठ जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आप जो फाइल है आपकी जो अफेक्टेड है विद दैट वॉर्म, आप उसको ओपन करो या ना करो, या आपके कंप्यूटर की हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, डैमेज करता है, और आपके कंप्यूटर की हेल्थ को क्या करेगा क्लास, खत्म कर देगा, एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर्स हेल्थ। ठीक है, लेकिन वायरस है ना, वायरस क्लास जब तक एक्टिवेट नहीं होता, जब तक एक्टिवेट नहीं होता, जब तक आप जिस फाइल के अंदर वायरस है उसको ओपन ना करें। So that's why worm को हम लोग क्लास क्या कहते हैं, we call worm stand alone। आपको फाइल को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और खुद ब खुद अपना सारा काम करता रहता है। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंट क्लास बिटवीन अ वायरस। वायरस को जब तक आप ओपन नहीं करेंगे तो आपके पास वो एक्टिवेट नहीं होगा, एंड इट वोंट बी हार्मिंग अप योर सिस्टम बेटा। फर्दर क्लास हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और वायरस होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द लॉजिक बॉम्ब। तो लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, कोड एम्बेडेड, पहले डेफिनेशन देख लें। कोड एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, दे आर एक्टिवेटेड टू कैरी टास्क सच एज डिलीटिंग और सेंडिंग फाइल्स टू द हैकर। अब बात करते हैं लॉजिक बॉम्ब की। ओके, बिफोर दैट वी हैव अ क्वेश्चन, सर कैन वी फिनिश वायरस बाय एंटीवायरस, बट हाउ कैन वी फिनिश वॉर्म्स? ओहो, नाइस क्वेश्चन। वॉर्म को फिनिश करने के लिए आपको अगेन एंटीवायरस भी इस्तेमाल होता है, और आपको डिस्क की डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करनी पड़ती है, आरएल। वो डिस्क की सारी एलोकेशन, सारी फाइल्स को वापस से रोकता है, एलोकेट करता है, और जो भी रेप्लिकेशन होती है उसको सारा डिलीट करता है। तो फिर आपके पास आपका वॉर्म जो है वो पहले एंटीवायरस चलाते हैं और फिर हम लोग डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं, तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारी डिस्क जो है वो लाइनअप हो जाती है। ठीक है, आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ।
आगे बढ़ते हैं। लॉजिक बॉम्ब की बात कर रहा था मैं। तो लॉजिक बॉम्ब क्लास क्या है? जैसे कि नाम है वैसे ही काम है। ये एक बॉम्ब है और ये बॉम्ब कब फटता है? ये जब फटता है जब कोई लॉजिक, आपकी सर्टेन लॉजिक मीट करे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि रात 11 बजे के बाद अगर यूजर ने गूगल क्रोम खोला, अगर रात 11 बजे के बाद अगर यूजर ने गूगल क्रोम ओपन किया, तो इनके जितने भी पासवर्ड हैं वो जो भी सेंडर था उनको सेंड कर देना। ठीक है? तो एक कंडीशन थी, लॉजिक थी। एक लॉजिक क्या थी? आफ्टर 11 पीएम एनीथिंग, एनी एक्टिविटी इन योर कंप्यूटर दैट विल बी सेंड टू द सेंडर। तो ये एक लॉजिक के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर क्या करते हैं, ये काम करते हैं बेटा। ठीक है? इसके बाद आपके पास आता है क्लास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्लास बड़ी जबरदस्त चीज है और ये आप लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा। ये आपके पास फिल्म वगैरह में आता है आपके पास। और फिल्म वगैरह में कैसे आता है आपके पास ये? एक पुराने जमाने की एक फिल्मों में आपको देखा होगा और ये ट्रू स्टोरी है। एक बहुत बड़ा पैलेस था एंड उस पैलेस की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग थी कि नो वन कैन एंटर इन दैट पैलेस। अब एनिमीज ने क्या किया? एनिमीज ने क्या किया? डिसाइड किया कि वो एक हॉर्स गिफ्ट करेंगे। एक वुडन हॉर्स क्लास उन्होंने गिफ्ट करा उन पैलेस वालों को। उन्होंने पैलेस का गेट ओपन करा और उसको हॉर्स को चेक किया। बोला ठीक है, ओके, लकड़ी का घोड़ा है, इतना खूबसूरत घोड़ा है, बुला लो इसको अंदर। और क्लब वो लकड़ी का घोड़ा अंदर चला गया। उन्होंने अपने पैलेस के दरवाजे बंद करे और क्लास उस लकड़ी के घोड़े के अंदर जो है वो आर्मी छुपी हुई थी। उस लकड़ी के घोड़े के अंदर क्या थी? आर्मी छुपी हुई थी। एंड उन्होंने बाद में रात में जाके गेट्स वगैरह ओपन कर दिए एंड बाकी जो आर्मी थी वो भी अंदर आ गई पैलेस के। तो क्लास ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है ना क्लास, ये दिखने में बिल्कुल सही होता है, एक सॉफ्टवेयर है। आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, आप उसको यूज करने लगे। जैसे ही क्लास आप फाइनल स्टेज की तरफ पहुंचते हैं तो वो अपना रंग बदल देता है। वो क्लास शो करता है कि यस, आई एम नॉट दैट सॉफ्टवेयर दैट यू वर थिंकिंग, आई एम अ सॉफ्टवेयर दैट विल डैमेज योर कंप्यूटर। तो क्लास दैट इज द रोल ऑफ द ट्रोजन हॉर्स। और ये आपके पास बड़ा खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है ये आपके पास, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। So, Trojan horse class, the definition: malicious program often disguised as legitimate softwares. After running the software, they replace all or part of legitimate software with intent to harm the system. ठीक है? After that class, you should know about the spyware. Spyware class simple है, आपके कंप्यूटर में आके बैठ जाता है एंड इट मॉनिटर्स द एक्टिविटीज दैट यू आर परफॉर्मिंग। आपके पासवर्ड्स, आपकी एक्टिविटीज, आपके अकाउंट नंबर्स, आपकी डिटेल्स, आपकी ईमेल्स, ये सब चीजें मॉनिटर करता रहता है और ओरिजिनेटर को, सेंडर को क्या करता रहता है? सेंड करता रहता है। ठीक है? आफ्टर दैट क्लास वी आर हैविंग द डेफिनेशन फॉर द फिशिंग एंड फार्मिंग। तो फिशिंग एंड फार्मिंग के बारे में आप लोगों को क्लास एक बात याद रखनी है सिर्फ। हाँ बिल्कुल अब्दुल हफीज, दिस इज बिल्कुल अरे आई विल बी सेंडिंग, आई विल बी अपलोडिंग द पीडीएफ एट शॉर्ट के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने आई थिंक ठीक ठाक अपलोड कर भी दी थी, इफ आई रिमेम्बर। मुझे इतना याद आ रहा है मैंने अपलोड कर दी थी। मेरे कोर्सेज कहाँ है भाई? माय कोर्सेज। हाँ, वॉन न्यूमन, वॉन न्यूमन की भी अपलोड हुई है। मेमोरी, मेमोरी की भी अपलोड हुई है। ट्रांसलेटर और सिक्योरिटी अभी चल रहा है तो इनकी भी मैं अपलोड करवा दूंगा। बिल्कुल अरेल में इनकी भी अपलोड कर दूंगा बेटा। ठीक है? बाकी सारी फाइल्स क्लास दे आर अपलोडेड। और अब जो है मैं क्विज़ेस भी अपलोड करूंगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकें। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू कैन गिव द क्विज बाय योरसेल्फ और आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपकी, आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वेयर यू गाइस आर स्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है? तो ये काम भी, एक्टिविटी भी मैं आप लोग से परफॉर्म करवाऊंगा। खैर आगे की बातें हैं अभी। सो नाउ क्लास, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास फिशिंग एंड फार्मिंग। अच्छा क्लास, एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ये सारी चीजें हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। अ सॉर्ट ऑफ अब्दुल हफीज बेटा, बिल्कुल आपके एग्जामिनर ने सिलेबस के अंदर बता दिया। उसने देखिए बड़ा ट्रिकी खेला। उसने बोला यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट मेलवेयर्स, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट मेलवेयर्स। और ये बोल के वो हट गया पीछे।
और कुछ उसने बाद में एग्जांपल भी दे दी कि लाइक हैकिंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सब तो पता ही होना चाहिए, लेकिन उसने एक जनरल टर्म भी यूज कर लिया, मेलवेयर। और आपकी जो लेटेस्ट बुक है जिसमें से जनरली क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो उस बुक के अंदर ये सारी डेफिनेशंस आपके एग्जामिनर ने आपको गिवन है। जो आपका जो नई आपकी ऑथर थी, दैट इज सारा लॉरी। सो उन्होंने क्लास क्या किया भाई, उन्होंने ये सारी चीजें इंक्लूड करी हुई हैं। और डोनाल्ड स्कॉट, दीज आर द टू न्यू असिस्टेंट एग्जामिनर्स, तो उन्होंने क्लास ये बुक के अंदर सारी चीजें इंक्लूड करी है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी, बिकॉज आज नहीं कल, कल नहीं परसों एग्जामिनर कैन आस्क। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, छोटी छोटी चीजें हमारे पास। अब हम लोग बात करते हैं फिशिंग और फार्मिंग की। देखिए, फिशिंग और फार्मिंग क्लास बच्चे क्या करते हैं, जनरली दोनों को कंफ्यूज करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। सिंपल सी लॉजिक रखेगा, whenever we are talking about the fishing, whenever we are talking about the fishing, fishing is fake, fishing is fake emails and farming is fake websites, farming is fake websites। तो बस सिंपल सी हमें क्लास ये लॉजिक के ऊपर काम करना है, इसी लॉजिक को आप लोग को याद रखना है। whenever we are talking about the phishing stuff, phishing is fake emails and farming is fake websites। फिशिंग क्लास क्या करता है आप लोग के पास, अगर आप लोग ने देखा होगा, आप लोगों को धोखा देने के लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी कभार ऐसे में आते हैं कि आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपका 5 लाख का इनाम निकल गया, तो दैट इज ऑल्सो फिशिंग, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फिशिंग। ठीक है, तो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन फॉर द फिशिंग फर्स्ट। Let's read out the definition class for the phishing first. When someone sends legitimate looking email containing links, attachment, and when the content is opened, it redirects to a bogus website. ठीक है, and when we talk about class farming, तो farming class आप समझे जरा, farming को समझे जरा। malicious code installed on user's computer and it redirects to a fake website। क्लास आपके पास क्या होगा, आपने बोला आज मैं ऑनलाइन पेमेंट करनी है कोई, आपने आपने बैंक अल हबीब डॉट कॉम एंटर करा। आपने जैसे ही बैंक अल हबीब डॉट कॉम एंटर करा, तो ऊपर यूआरएल आपका फार्मिंग, अगर आपका वायरस था, वो कोड इंस्टॉल हुआ था आपके कंप्यूटर में, वो आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स अ न्यू वेबसाइट दैट विल बी पाकिस्तान बैंक अल हबीब डॉट कॉम। एंड यू विल बी लाइक, यार ये तो बिल्कुल चलो क्या पता यूआरएल चेंज हो गया हो, और पाकिस्तान बैंक अल हबीब ये भी तो पाकिस्तान का है, पूरे पाकिस्तान का, क्या पता शायद सेम हो, और बिल्कुल वैसी वेबसाइट लग रही थी। एंड दे आस्क यू फॉर द डिटेल्स, उन्होंने बोला कि काइंडली अपनी डिटेल्स एंटर करें, आपने जल्दी जल्दी अपनी सारी डिटेल्स एंटर करी, एंड एट लास्ट आपका सारा पैसा क्लास उन्होंने निकाल लिया हैकर्स ने। तो दैट इज क्लास हाउ फार्मिंग टेक्स प्लेस। आजकल की दुनिया के अंदर तो हमारे पास बहुत ज्यादा वर्किंग हो चुकी है, हमारे पास फार्मिंग एंड फिशिंग इन सब चीजों के ऊपर। अब हम लोग ज्यादा इन चीजों से बच जाते हैं बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। बहुत ज्यादा आपके पास लोगों को, लोग आर नॉलेज है उनके पास, एंड दे आर वेल अवेयर कि भाई क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग जिनको नहीं होती, और वो इस जाल में फंस जाते हैं, देयर डेटा, देयर मनी एंड देयर स्टफ इज बीइंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिशिंग एंड फार्मिंग। ठीक है, सो बड़ा हमारे पास इसको हमें सोच समझ के चीजों को टैकल करना चाहिए। अच्छा जी, तो क्लास दिस वाज these were the class definitions that you should know about। ये सारी डेफिनेशन है क्लास, आपके इन सारी डेफिनेशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस क्लास हमारे पास अब ऑफ कोर्स वी आर हैविंग सम मेथड्स, हमारे पास और मेथड्स भी आते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट बैक, हाउ टू प्रिवेंट दीज अटैक्स। इन सारे अटैक से बचने के लिए वी आर हैविंग सम प्रिवेंशंस एज वेल। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रिवेंशन होते हैं क्लास इन अटैक से बचने के लिए। तो लेट्स सी वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। परफेक्ट। तो क्लास प्रिवेंशन फ्रॉम द डेटा लॉसेस,
Okay, starting with the first, let's say the rule is user accounts. तो क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजर अकाउंट्स, तो यूजर अकाउंट क्लास क्या डिफाइन करता है आपको? ओनली पीपल विद करेक्ट आईडी एंड पासवर्ड्स should access the systems. ठीक है। नंबर टू class, that one more method class that can be use strong passwords. ठीक है। and one of the example class for a strong password can be one of the example class for a strong password can be like M, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, मैक स्पेशल करेक्टर कोई होना चाहिए, एट द रेट ऑफ नंबर्स होने चाहिए, उसकी लेंथ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो दीज आर द क्लास फ्यू बेसिक रूल्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है। फर्दर द थर्ड थिंग class that we can do is we can use firewall and proxy सर्वर्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों चीजों को बड़ा डिटेल्ड में देखेंगे भाई, कि फायरवॉल क्या होती है और प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। ठीक है। बिकॉज इट्स अ डिटेल टॉपिक, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो हम इसको काफी डिटेल में देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। फर्दर अभी मैंने सिर्फ आप लोग को बता रहा हूं कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट दीज हैकिंग एंड ऑल दैट। ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है अभी हम लोग, लेकिन करंटली हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं अभी, तो दैट्स वाई। फोर्थ मेथड क्लास कैन बी यूज एंटीवायरस या फिर एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। फर्दर one more point class can be use encryption। ठीक है। sixth point class can be अच्छा, एक्चुअली मैं वो कोई रेनबो नहीं बना रहा, मैं डिफरेंट कलर्स ट्राई कर रहा हूँ ताकि आई कैन फाइनलाइज कि मैं इसको आगे यूज करना है या नहीं करना। ठीक है। तो द सिक्स पॉइंट क्लास कैन बी वी कैन यूज बायोमेट्रिक्स एज वेल। और बायोमेट्रिक्स के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर, लाइक रेटिना स्कैनर। रेटिना स्कैनर इज एक्चुअली क्लास योर आई बॉल्स। आई बॉल को क्लास आप लोग का जो पैटर्न होता है, आई का जो पैटर्न होता है, आप उसे वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है। फर्दर यू कैन हैव फेस रिकॉग्निशन। ठीक है। फर्दर यू कैन हैव वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है। फर्दर क्लास द सेवेंथ स्टेप कैन बी in the prevention stuff that you can use not use
backup the data. ठीक है, तो दीज आर फ्यू 7 रूल्स हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करें. So these are the methods class which which we can use for preventing our data from being hacked and lost. Or I think we are good. I think we are good. Let me check if you have any questions till now.